Till last class, we had discussed some of the introductory portions like some definitions of pharmacology and all these things. And in the last class, we had discussed the syllabus of the entire course curriculum. From today onwards, we'll be studying the contents. So in the very first class, we'll be discussing the history of pharmacology. And history of any subject, what I think is very important. Although I don't like this subject very much, but whatever science or whatever information you are having, who are the people who have developed these informations, who have discovered these sciences? We should acknowledge them. We should know their names. We should know their contributions. Whatever drug medicine I'm using, who is the first person who has discovered this medicine, who has worked over the pharmacology of this drug, I should know. The scientific community should acknowledge, because a person is working for his lifetime, and if he is able to discover the treatment of COVID-19, the whole world will acknowledge for lifetime, for a longer time. So that is why history of any subject is important. So in the very first class, I'd like to add this, because just after 2-3 minutes, you will be able to know what volume of information we are having in the history of pharmacology. So we'll be dividing this history of pharmacology in 2 classes. First, in today's class, and one more class will be completing the entire history of this subject. So you all know what is pharmacology, what we study in pharmacology. Well, pharmacology is related with study of drugs and medicines, and it is related with treatment, because you have to offer treatment to your patients, and for that you require drugs, you require medicines. So at what time the first drugs or the first medicines were discovered? If you go back into the history, if you the discovery of medicines or uses of drugs or medicaments or uses of different herbs, different medicinal plants for treatment of different ailments is very long, and we are fortunate that ancient India or ourselves, our ancestors were the first in the world to offer something to the community for treatment of animals. So our history throughout the globe, somewhere approx 3,000 years before Christ, ancient Indians had discovered some very good medicinal treatments that we'll be discussing. So we are first, we are pioneer in the world, we were the first. And followed by Chinese people, some 2,700 years before Christ, they had discovered the primary information related to pharmacology or the treatment. And followed by Egyptian literatures, some Egyptian literatures dates back to approximately 2,000 years back. These are the 3, followed by others also. So let's have what our ancestors they had. Some 3,000 years before Christ, this Rig Veda was written, and this Rig Veda contains information related with. They describe some importance of medicinal herbs, medicinal plants. Some plants, some herbs are being have been given in Rig Veda, which describe some medicinal property for treatment of animals. So these are the oldest records of civilization relating to medicinal herbs. Well, Rig Veda is not entirely related with the treatment of with medicinal plants. The more comprehensive information is Ayurveda, and it is the oldest. You can say it is the oldest medical science of which it is the oldest system of medicine, in fact, which recommends herbal remedies and animal origin products for treatment of disease in man and animals. In Ayurveda, you will find
lot of information related with plants as well as with animals also. The medicaments or the agents or the drugs which can be used for treatment, they have been either obtained from some plant sources as well as from animal sources. And this Ayurveda describes a lot of information of all those things. Well, related to treatment of diseases, will you please mute yourself so that we can discuss? Well, related to treatment of different diseases in human beings as well as for animals also. So for veterinary treatment, veterinary medicine also, Ayurveda has descriptions. And this Ayurveda is also dates back to some 3,000 years back. So these were the first informations throughout the globe that described to treat some science of treatment. Not exactly, not only it is some science, it is a complete science which we are practicing till date. Ayurveda is being taught nowadays. A lot of Ayurvedic colleges are there, and whatever you'll be surprised that 3,000 years that, and now we are somewhere in 2020. So you count 2,000 years more. So it is 5,000 years have lapsed, and whatever information we are discovered at that time in Ayurveda, still we are practicing. And not much advancements have come in Ayurveda. Still we are practicing some books written at that time, which we call as Ayurveda. There are 4 Vedas. So one Veda is Ayurveda, and still we are practicing. Now you can imagine at somewhere 5 years back, how their computers were not there, not even papers were there. So in what form of they could have stored the information? So stories of information, they were not in the form of books or any writings. So obviously writings were there. Some at that time we were not having papers of the modern time. They were using some sort of papyri, you can say. आपको बहुत सारे movies में आपने देखा होगा कि कोई राजा का कोई manuscripts. Yes, कोई अगर मैसेज लेके जा रहा है तो वो फोल्ड करके ले जा रहा है. तो उस समय के जो वो पेपर्स तो होते थे, बहुत सारे प्लांट के जो पल्प हैं उनको अब गूगल यूट्यूब में देखना पेपर्स कैसे बनते थे. तो उस तरीके की इंफॉर्मेशंस में जिनकी बहुत कीपिंग क्वालिटी नहीं होती थी, और इसलिए जो ओल्डेस्ट राइटिंग्स हैं हमारे, वो हमारे पास प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं. उनके किसी ने उनको रीराइट किया है, तो वो सारे कुछ चीजें अवेलेबल हैं. दैट्स व्हाई at that time it is presumed that Ayurveda was highly developed, and we were having treatment of majority of the ailments or diseases which we have lost, we are not having till at now. And since research in Ayurveda nowadays it has practiced, the government is giving focus that those plants should be rediscovered, and their values should be rediscovered, and newer sciences like whatever we are practicing, like allopathy and all these things, they have been developed. But these are the oldest sciences of medicine, and which is still relevant. So apart from that, you are knowing that if you go back to Indian mythology, there is Bhagwan Dhanvantari, and इनका जन्म कैसे हुआ था? Anybody can say any idea about भगवान धन्वंतरी? फोटोग्राफ देख के कुछ हिंट लग सकता है आपको? Try to participate in the class, otherwise it may be a monotonous discussion, only I'll be speaking. Anybody? कुछ आइडिया भगवान धन्वंतरी किस चीज के भगवान हैं, क्या करते हैं? Be quick to answer, otherwise I have to name. Yes. पानी से जन्म हुआ था सर उनका. सर समुद्र मंथन हुआ था लग रहा है. राइट. समुद्र मंथन में जितने रत्न निकले थे, एक ये भी थे, और ये हाथ में कुछ लेके निकले थे. जो हाथ में दिख रहा है ना, वो अमृत का घड़ा. यस. और जो भी बीमार हो, एवं कोई भी बीमारी हो, एक ड्रॉप दे दें तो वो ठीक हो जाएंगे या उनकी दीर्घायु हो जाएगी. ये ऐसा था. नाउ ये तो हमारी माइथोलॉजी है. कमिंग बैक टू साइंस, ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे एक्सट्रैक्ट्स हैं उनके, ऐसे हर्ब्स हैं
जिनके लाइफ सेविंग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रामायण में लक्ष्मण जी को जड़ी बूटी जो दी गई, तो वो सारे हर्ब्स हैं, स्टिल दे आर हैविंग। और बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जिनके लाइफ सेविंग प्रॉपर्टीज। पर्पस ये कहने का है कि प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, बैकग्राउंड नॉइज नहीं। अपार्ट फ्रॉम मृत्युंजय I have muted all now. Well, now this was some sort of majburi, you can say, because I cannot concentrate if people are not keeping themselves mute. Now, when we study this Ayurveda, there are certain contributors like Charak, Sushrut, Bhagavad. They were thought to be pioneers in Ayurveda. They are having a lot of information. They can treat any number of any type of disease. So these were our ancestors, and we were pioneers in medicine. You must be knowing Nakul in Mahabharata. Now I'm unmuting you all. Please maintain the discipline so that तब बोलेंगे, ठीक है? ओके सर। इसमें आपने जिस भी बुक को पढ़ा है वो फॉरेन ऑथर बुक्स हैं, और जैसे रिवेरी वाली बुक में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता वो कि इंडियंस वेर फर्स्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन हमारे पास लिटरेचर्स हैं, हमारे ये वेद हैं। वेद के एंसेस्ट्री लोगों को पता है कि वेद कब लिखे गए थे, कितने साल पुराने हैं। कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी से तो पता चल ही जाता है कि उनके जो पत्र हैं वो कितने साल पुराने हैं। और उस समय उसमें अगर किसी डिजीज का ट्रीटमेंट का रेफरेंस है जो आज भी यूज होता है, वी कैन प्रूव आवरसेल्फ। तो जो रिवेरी या जो फॉरेन ऑथर्ड बुक्स हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए चाइनीज को फर्स्ट लिखा है, बट इट इज नॉट ट्रू। चाइनीज लिटरेचर जो अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे 27 years बैक पहले आए थे। These Vedas are more than 3000 years old. So we can at least हम तो बोल ही सकते हैं ना, दूसरा कोई माने या नहीं माने, हमारे पास सबूत है, हम बोल सकते हैं that we were first in the world. इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। महाभारत में आपको पता है नकुल थे, नकुल घोड़ों की देखभाल करते थे, उनका ट्रीटमेंट भी करते थे। So you can say he was the first veterinarian कि उनके पास एनिमल्स का मैनेजमेंट और एनिमल्स का ट्रीटमेंट का कुछ इंफॉर्मेशन था कि कैसे उनको करें। फिर चरक साहब ने जो इन्होंने एक काफी वॉल्यूमिनस बुक इंफॉर्मेशन लिखी व्हिच इज नोन एज चरक संहिता, और ये भी काफी पुरानी बुक है, मोर देन 27 years old। और इसमें भी आयुर्वेद के काफी क्लासिफिकेशंस हैं, एंड ही डिस्क्राइब्ड सम 3000 drugs and classified 50 group according to their effect. तो काफी कुछ क्लासिफिकेशन बताया कि these are the drugs which are acting on the digestive system, these are the plants which are acting over the respiratory system. These informations he gave a lot before. There was one Sushrut, and he has compiled one book known as Sushrut Samhita. Now in Ayurveda, if you visit any Ayurvedic college, you will find that they are still studying Charak Samhita and Sushrut Samhita as their books of pharmacology. हम केडी त्रिपाठी पढ़ते हैं ना, और रिवेरी और गुडमैन गिलमैन पढ़ते हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज के जो ग्रेजुएट्स हैं वो आज भी चरक संहिता और सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं। और ये चीजें किसी ने अभी डेवलप नहीं की है, they were developed and discovered long back, जो डेट्स की हम बात कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, दिस सुश्रुत आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटोग्राफ्स में कि उस समय बहुत सारे एनेस्थेटिक्स डिस्कवर्ड नहीं थे, स्टिल उस समय सर्जरी होती थी। And he was this Sushrut, he is supposed to be the first surgeon in the world,
जो उस समय के प्लास्टिक, आज के प्लास्टिक सर्जरी के इक्विवेलेंट है। और यहाँ पे आप देख लो फोटोग्राफ में कि 2-3 लोग इसके पैर टांग को पकड़े हुए हैं और ये सर्जरी परफॉर्म किए हुए हैं, क्योंकि एनेस्थेटिक्स नहीं डिस्कवर्ड थे, बट सर्जरी, कोई अगर वुंड हो गया हो उनको अगर ड्रेन आउट कर दें तो वो ठीक हो जाता है। हर्ब्स हैं जिनमें एंटीबायोटिक इफेक्ट्स हैं, उनको अप्लाई करें तो इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन उस समय थे, और एंटीबायोटिक्स बहुत पहले डिस्कवर नहीं हुए। एंटीबायोटिक्स तो तकरीबन 1700-1800 के आसपास में इनकी डिस्कवरी हुई। तो बहुत पहले, जब पूरे ग्लोब में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमारे पास इतने डेवलप्ड साइंसेस ऑफ मेडिसिन था। तो अगर रिवेरी के बुक में एक्सेप्ट नहीं करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वी शुड नो। डाउट क्लियर है अभी? Okay, now coming to Chinese, Chinese were also good. Some 27 years back, एक वहाँ emperor थे, Emperor Shen Nung, and he has written one compilation called Pen Sao, which contains a collection of vegetables, some metals, some animal products to be used as medicaments or the remedies or for treatment of some of the disorders or diseases. So हमारे इंडियंस के बाद ये चाइनीज सेकंड वी कैन से इनका नेक्स्ट। इसके बाद देखें इजिप्शियन पीपल्स, इजिप्ट में ये पैपरी है, जो फोटोग्राफ आप दिख रहे हो ना कि कुछ प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनको चटनी पीस करके और फिर स्प्रेड करके ड्राई करके उस पर कुछ मिट्टी विट्टी लगा करके एक पेपर बनाने की कोशिश की गई, जिसको पैपरस बोलते थे, और प्लूरल हो गया पैपरी, और उसी पे फिर लिखने का काम होता था। तो वो पेपर पे जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, ये सबसे पहला जो इजिप्शियन, ओल्डेस्ट इजिप्शियन ड्रग कोडिफिकेशन है वो है कहून पैपरस। इट डेट्स बैक टू सम 2000 years बिफोर क्राइस्ट। इसमें कुछ वेटनरी मेडिसिन के बारे में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे ये देखो वेटनरी पैपरस लिखा हुआ है। ये जो बीच बीच में ग्लोब टाइप का टूटा हुआ है, ये पेपर टूट गए हैं, ये आज भी प्रिजर्व्ड है, जर्मनी की म्यूजियम में ये प्रिजर्व्ड है कहून पैपरस। और एबर्स पैपरस तो थोड़ा रिसेंट है, 1150 years बैक बिफोर क्राइस्ट, और इसमें देखोगे कि कुछ कलर्ड इंक भी यूज है लिखने के लिए, और ये भी अभी प्रिजर्व्ड है, ये इनकी कंडीशन थोड़ी अच्छी है। तो एबर्स पैपरस में कहून पैपरस में कुछ वेटनरी मेडिसिन का रेफरेंस था, और यूट्राइन डिजीज ऑफ वीमेन इनका इंफॉर्मेशन है लिखा हुआ। और एबर्स पैपरस में है डिजीज कंडीशंस एंड सम मोर देन 800 प्रिस्क्रिप्शंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स। इसके बाद आए फिर, ऐसा नहीं है कि इन्हीं 3 रीजन्स में सारा रिसर्च इंफॉर्मेशन था, थ्रू आउट द ग्लोब नॉट लॉट ऑफ पीपल वर देयर। नाउ कमिंग बैक टू सम 460 years बिफोर क्राइस्ट, एक हिपोक्रेट्स थे, इन्होंने एक बेसिकली ही वाज ए ग्रीक फिजिशियन, और इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। इन्होंने अपना कुछ कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस दिया जो आज भी रेलेवेंट है, बिल्कुल गलत नहीं हुआ है आज तक, बहुत हद तक सही है आज भी। और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जिसको आज भी आयुर्वेदा में प्रैक्टिस करते हैं। इन्होंने बोला कि 4 ह्यूमर्स हमारे बॉडी के हैं, जैसे अभी हम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, उनके सिम्टम्स, उनकी अलग अलग चीजें बोलते हैं। तो इन्होंने बताया कि 4 ह्यूमर्स हैं, और एक है बाइल है, फिर है फ्लेम है, फिर सैंग्विन टेम्परामेंट, फिर इस तरीके से डिफरेंट टेम्परामेंट्स जो थे, और जो विच वर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एसिडिटी, स्वीटनेस, दीज थिंग्स, उनको मॉडिफाई करके हम डिजीज को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि लिवर से बाइल सेक्रेट हो रहा है, बाइल का अगर क्वालिटी खराब हो गया तो हम बोलेंगे कि इस टाइप का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। ब्लड का अगर कुछ पीएच और कुछ क्वालिटी खराब होता है तो हम बता सकते हैं सिस्टमिक डिसऑर्डर है। उस तरीके से स्टूल का अगर क्वालिटी, यूरिन का क्वालिटी खराब होता है तो हम बता सकते हैं कि ये इस टाइप का डिसऑर्डर है।
तो ये सारे कुछ एक कॉन्सेप्ट के बेस पे उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और ये फर्स्ट टाइप का ट्रीटमेंट का एक सिस्टमेटिक साइंस इन्होंने डेवलप किया, इसलिए इनको स्टिल फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। और आज की समय में मेडिसिन काफी एडवांस्ड है, हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन। फिर एक एरिस्टॉटल का नाम बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपने सुना होगा, पैथोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, सो मेनी सब्जेक्ट्स में। बेसिकली ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी इनके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। और उस समय ये एक बहुत बड़े, प्लेटो का नाम सुना है? प्लेटो, एनीबॉडी कैन से? यस सर। यस, प्लेटो नाम सुना है? यस सर, यस सर। क्या नाम सुना है प्लेटो के बारे में? सर ये किसी का शायद सेनापति था, ऐसा कुछ है, पता नहीं। एक वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम था ये, किंदर का फिलोसोफर थे, अरस्तु, प्लेटो, ये सारे। और ये प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टॉटल, इनका भी बहुत नाम हुआ, और इनके सो मेनी स्टूडेंट्स हैं जो आगे अभी आप आएंगे। और इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दिया, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे इनकी पकड़ थी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बोला इन्होंने। और इन्होंने कुछ साइंटिफिक बेसिस फॉर मेडिसिन की भी बात करी, कि कैसे किसी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, क्या साइंटिफिक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। और इन्होंने ही रिकॉर्डेड न्यूमरस ऑब्जर्वेशंस ऑन एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स पे कुछ ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किया, और फिर बताया कि इस पे ये अप्लाई करने से ये ठीक हो सकता है। लेकिन मेडिसिन साइंस को ये बहुत डेवलप नहीं कर सके, जिसको हिप्पोक्रेट्स ने छोड़ा था। हिपोक्रेटिक थॉट्स को इनके स्टूडेंट्स ने आगे बढ़ाया, जो अभी आप आगे देखेंगे। एक थे, इनके स्टूडेंट थे थियोफ्रेस्टस, जिनको फादर ऑफ बॉटनी भी बोलते हैं, बेसिकली बॉटनिस्ट थे। और बहुत सारे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी में इनका काफी काम है। जितने भी प्लांट्स हैं, उस समय मेजॉरिटी ऑफ द जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन थे वो प्लांट्स थे, और आज भी हैं। ऐसा शायद ही कोई बीमारी है जिसका इलाज किसी न किसी प्लांट में अवेलेबल नहीं है, मे बी हमें नहीं पता हो। तो इन्होंने सिस्टमेटिक्स पे और टैक्सोनॉमी पे काफी काम किया, और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया, तो इनका भी कंट्रीब्यूशन है। इन्हीं के स्टूडेंट थे डायोस्कोराइड्स, एरिस्टॉटल के स्टूडेंट्स थे, ये दोनों कलीग थे। तो बेसिकली ये एक फिजिशियन, फार्माकोलॉजिस्ट थे, ही वाज सर्जन आल्सो एंड बोटानिस्ट आल्सो, क्योंकि ट्रीटमेंट करने के लिए जड़ी बूटी की नॉलेज उस समय जरूरी थी। एंड ही कंपाइल्ड एंड इम्प्रूव्ड द वर्क ऑफ थियोफ्रेस्टस एंड रोट द फर्स्ट मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका क्या होता था? जैसे नाम है, मटेरिया मींस मटेरियल्स का कलेक्शन है, मेडिका मींस मेडिकल प्रिपरेशंस का। और मटेरिया मेडिका मतलब, कहने का मतलब है कि मेडिसिन में ट्रीटमेंट करने के लिए हमें जिन प्लांट को, जिन ड्रग्स को हमें की जरूरत है, उन सारे ड्रग्स का जो कंपाइलेशन है, जो कॉम्पेंडियम है, उसको मटेरिया मेडिका बोलते हैं। और वो मटेरिया मेडिका में बेसिकली प्लांट्स का इंफॉर्मेशन होता था। इस प्लांट का रूट यूज करेंगे, उसका शूट यूज करेंगे, इसका लीफ यूज करेंगे, इसको इतना डोज में करेंगे, इसको कूट ड्राई करके करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन इतना मात्रा में यूज करेंगे, इसके साथ यूज करेंगे, ये सारे डिटेल इंफॉर्मेशन जो थे वो मटेरिया मेडिका में। मटेरिया मेडिका इनफैक्ट आज के डेट में ये रिफाइंड हो गया, आज उसको एक नए सब्जेक्ट से जानते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, फार्माकोलॉजी। ये फार्माकोलॉजी का ओल्ड वर्जन था, जिसको हम मटेरिया मेडिका बोलते हैं। इवन हमारे डिपार्टमेंट का भी जो नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, ये समवेयर 1970s के आसपास ये पड़ा है। उसके पहले जब 1927 में कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मटेरिया मेडिका, इसमें फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, पैथोलॉजी, ऐसे 3-4 सब्जेक्ट्स जो आज के हैं वो उसके अंदर थे। मटेरिया मेडिका जो हमारा है वो प्राइमरी साइंस है, ओल्ड साइंस है, जिससे बहुत सारे सब्जेक्ट्स इवॉल्व हुए हैं। जिससे मेडिसिन अलग हो गया, फार्माकोलॉजी अलग हो गया, पैथोलॉजी अलग हो गया, टॉक्सिकोलॉजी अलग हो गया, इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स इवॉल्व हुए। और इन्होंने फर्स्ट मटेरिया मेडिका, कह सकते हैं फार्माकोलॉजी की पहली सबसे ओल्डेस्ट किताब लिखी, जो 6 वॉल्यूम्स की, और इसमें तकरीबन मोर देन 600 प्लांट्स का इन्होंने डिटेल्स दिया है कि इस प्लांट में ये प्रॉपर्टी है, इसको इस चीज में यूज करते हैं, लाइक दैट।
and drugs were discussed from the standpoint of their name, botanical name, source, उसका source क्या है, source कहने का मतलब कि उसका सीड यूज होगा, कि उसका पल्प यूज होगा, उसका जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो प्लांट के कौन से प्लांट पार्ट में है वो उन्होंने बताया, उसका आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट फॉर अडल्टरेशन, प्रिपरेशन ऑफ डोजेज फॉर्म्स, कैसे बनाएंगे, उसको कैप्सूल बना के देना है या उसको पाउडर फॉर्म यूज करना, लाइक दैट। तो ये सारे कंसाइज इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया। और इनका जो एरा है आफ्टर क्राइस्ट है, इट डेट्स बैक टू सम 40 to 90। इसके बाद का डिस्कशन जो से लेके टिल डेट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें, ठीक है। और इसके बाद अब हम, ये तो एंसेस्ट्री थी जो हमें जाननी चाहिए, और इसके बाद लेटेस्ट एडवांसमेंट्स क्या हैं, बहुत सारी चीजें आएंगे, बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे कि जेनर का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो लुईस पास्चर का क्या है, तो और दूसरों का क्या है, और कैसे वो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन चीज को डिस्कस करेंगे। अपने पास 2-3 मिनट टाइम है, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, देन वी कैन डिस्कस। यस प्लीज, एनीबॉडी? सर, इंडिया के फर्स्ट वेटरनेरियन जो है वो सालिहोत्रा हैं, तो उनके बारे में हमने क्यों नहीं पढ़ा इसमें? छूट गया है, बहुत सारी चीजें हैं दी जा सकती हैं। एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन, नॉर्मली अपने पास जो हिस्ट्री का वो कंटेंट है वो एक क्लास का है, मैंने उसको थोड़ा सा 2 क्लास में किया है। नॉर्मली पीपल डोंट रीड हिस्ट्री ऑल्सो, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने स्किप की हैं, ठीक है। इंडियंस को फर्स्ट बताने पे कुछ ऑब्जेक्शंस हुए, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी एंसेस्ट्री का है जो यहाँ डिस्कस किया जा सकता है। पर्पस ऑफ द वेरी क्लास इज टू नो द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस, लेकिन